بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق قریب میں عقیدت دی گئی اور اسلام نے اس روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا، جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار و محبت اور حسن و سلوک کرنے کی تلقین بھی کی۔ جیسے ایک صحابی کی کونیت تھی ابو ہریرہ، یعنی بلیوں والا پڑ گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام لانے سے قبل عبد الشمس تھا اور اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ کسی نے عمر بن عامر لکھا تو کسی نے عبداللہ بن عامر لکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام راجح قول کے مطابق عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کونیت ہے، اور ابو ہریرہ کونیت رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کونیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتے، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے سدھایا یا پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہل شاید اس وجہ سے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھی، اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کے اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، کبشہ بنت کعب بن مالک جو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی برتن میں ڈالا تو بلی آئی اور اس سے پینے لگی تو انہوں نے اس کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا۔ کبشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھے جا رہی ہوں تو وہ فرمانے لگے، کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ نجس اور پلید نہیں بلکہ یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والیاں ہیں۔ دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا کہنا ہے گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے،
ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली ना ही मूजी जानवर है और ना ही निजस है। हर शख्स को मालूम है इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रखना फायदा मंद है। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फायदा यह है कि बिल्लियों को इंसानों का छूना, प्यार करना और इनके साथ खेलना बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महफूज होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली को छूने, प्यार करने से डिप्रेशन के मर्ज का इलाज होता है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चुनाचे पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटा कर बिठाया जाए या फिर सुलाया जाए तो इससे ना सिर्फ आपकी बिल्ली खुश होगी, बल्कि ये अमल आपके डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। पालतू बिल्ली घर में रखना इसलिए भी फायदा मंद है क्योंकि ये घर में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह को खा जाती है। जो लोग बिल्लियां पालते हैं उनमें दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है और उन लोगों में तन्हाई का एहसास और उदासी कम हो जाती है, और जिन लोगों के पास बिल्ली होती है उनको नींद भी बेहतर आती है, और जो बच्चे बिल्लियों के साथ पले बड़े हों उनमें एलर्जीज कम होती हैं। जिन लोगों के बच्चे बड़े हो चुके हैं और खाली घर घोंसले के एहसास का शिकार हों उनके लिए बिल्लियां पालना और भी फायदा मंद है। इससे उनका दिल बहला रहता है और वो अपने जवान बच्चों की जिंदगी में दखल अंदाजी कम कर सकते हैं। एक तहकीक से ये पता चला कि जो लोग जानवर पालते हैं उन्हें डॉक्टर के पास 15% कम जाना पड़ा। इससे ये मालूम हुआ कि ज़हनी सेहत के साथ साथ पालतू जानवरों का जिस्मानी सेहत पर भी मुस्बित असर होता है। इस बात को एक चीनी रिसर्च से दोबारा साबित किया गया जब ये देखा गया कि चीनी खवातीन जो पालतू जानवरों की मालिक थी ज्यादा बाकायदगी से वर्जिश करती थी। अक्सर लोगों के लिए उनके पालतू जानवर खानदान के अफराद की तरह होते हैं जो उन्हें जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में मदद का सहारा देते हैं। घर में इधर उधर दौड़ते भागते ये दोस्त मियाँ बीवी को अपना रिश्ता मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल कूद सकते हैं, और जब बच्चे बड़े होकर घरों से दूर चले जाते हैं तो यही जानवर वालिदैन के दरीना दोस्त बन जाते हैं। अमेरिका में एक तहकीक में दिखाया गया कि 12 माह से कम उम्र बच्चों वाले घरों में से 63% के यहाँ पालतू जानवर मौजूद थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया में एक जायजे में मालूम हुआ कि जब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं तो जानवर पालने वाले घरों में 10% इजाफा हो जाता है। अक्सर वालिदैन समझते हैं कि जानवरों की देखभाल करने से बच्चों को दूसरों की मदद करने, एहसास जिम्मेदारी और हमदर्दी जैसे गिरा कदर सबक मिलते हैं। इस हवाले से अमेरिका की टिफ्टस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक प्रोफेसर मैगन म्यूलर कहती हैं कि ये बहुत अहम चीज़ है। ख़ास तौर पर इससे छोटे बच्चों को सबक मिलता है कि किसी दूसरे शख्स के ख्यालात या नुक्ता नज़र आपसे मुख्तलिफ हो सकता है। शायद बच्चों के लिए अपने बहन भाइयों की निस्बत जानवरों से ये सबक सीखना ज़्यादा आसान होता है। दोस्तों, ये रवायात और साइंसी तहकीक साबित करती है कि घर में बिल्लियाँ पाली जा सकती हैं। अगर किसी को शौक है तो वो ज़रूर पूरा करे, मगर इनके खाने और पीने का पूरा ख्याल रखा जाए और इसे कोई तकलीफ और ईज़ा ना दी जाए। साइंसी एतबार से भी घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फ़ायदा है, वो ये कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महफूज होता है। अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजुर्बात के बाद सामने आई। वैसे तो ये मालूमात सब के लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज हैं, लेकिन जिन्होंने बिल्लियां पाल रखी हैं उनके लिए इंतहाई फ़ायदा मंद भी हैं। 2 बिल्लियां आपस में कभी भी म्याऊं करके बात नहीं करते। जब भी आपकी बिल्ली म्याऊं करे जान लें कि वो आपसे मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों की मूंछों के मुतल्लिक एक आम तासुर पाया जाता है कि इनकी मूंछों के जरिए बिल्लियां अपना तवाज़ुन बरकरार रखती हैं, बल्कि इसी तरह जैसे अक्सर सींगों वाले जानवरों के सींगों के मुतल्लिक यही तासुर पाया जाता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि ये तासुर सरासर गलत है। बिल्ली की मूंछों का इसके जिस्मानी तवाज़ुन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछें दरअसल एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ अशिया के साइज़ का पता लगाती हैं और बिल्ली को इससे आगाह करती हैं।
हत्ता कि अंधेरे में भी बिल्ली अपनी मूंछों के जरिए किसी भी फासले या किसी भी चीज के साइज का पता चला लेती है। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली की मूंछें तंग जगहों यानी चूहों के बिल वगैरह के सुराख की चौड़ाई का भी अंदाजा लगाती हैं। बिल्ली अंधेरे में भी अपनी मूंछों के जरिए किसी बिल का पता चला लेती है कि वो कितना चौड़ा है। अगर बिल्ली किसी तंग जगह में जाना चाहती है तो ये उसकी मूंछें ही हैं जो इसे बताती हैं कि वो इस तंग जगह में जा सकती है या नहीं और कहीं अंदर फांस तो नहीं जाएगी। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की मूंछों की मुख्तलिफ हालतें उसके मूड्स के बारे में बताती हैं। चुनाचे कभी भी इसकी मूंछें काटनी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपने बिल्ली की आंखें निकाल दी हों। दीन इस्लाम अमन का दीन है। दीन इस्लाम सिर्फ हमें इंसानों से ही मोहब्बत करना नहीं सिखाता बल्कि ये बेज़बान जानवरों से नरमी का बर्ताव करने, उनका ख्याल रखने, हत्ता के दरख्तों का भी ख्याल रखने की ताकीद करता है। रवायत है कि एक बार किसी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या जानवरों से नरमी का सलूक करने पर भी खुदा की तरफ से कोई सिला मिलेगा? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, किसी भी जिंदा जानदार से मेहरबानी का सलूक करना इंसान को अल्लाह के इनाम का हकदार बना देता है। हम सब का फ़र्ज़ है कि हम भी उसवा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए अपने पालतू जानवरों और दूसरे सब जानवरों का ख्याल करें, उनको तकलीफ ना पहुंचाएं। सुबहान अल्लाह, जो मज़हब अपने मानने वालों को जानवरों का इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है वो इंसानों, इंसानियत और लोगों की गर्दनें काटने की कब इजाज़त देता होगा। अल्लाह हमें इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पैकर बनाए और हमारे हाल पर रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।